میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان ایک اور یوزفل ویڈیو کے ساتھ آج حاضر ہوا ہوں۔ آج ایک ایسی بیماری کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کا اردو میں یا پنجابی میں کوئی نام نہیں ہے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی تھوڑا سا نیا ہے، نئے سے مراد کچھ دہائیوں پرانا ہے، بہت پرانے لٹریچر میں اس کا ذکر نہیں ملتا، اور ابھی بھی ہمارے کچھ لوگ جو ہیں، ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، ابھی بھی کچھ اس کی کویشچن کرتے ہیں کہ یہ اس کو ایک بیماری کہنا چاہیے کہ نہیں۔ بہرحال زیادہ تر لوگ اس کو ایک بیماری مانتے ہیں، اور اس بیماری کا نام ہے میٹابولک سنڈروم۔ میٹابولک سنڈروم کا تھوڑی سی میں تشریح کر دوں۔ سنڈروم ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں جب کوئی تین چار خرابیاں ہمیں کٹھی نظر آئیں، کئی دفعہ ان کے بیچ میں کوئی لنک جو ہوتا وہ نظر نہیں آتا کہ کیوں وہ کٹھی ہیں، لیکن وہ 3 4 5 کچھ چیزیں، کوئی لیبارٹری ایبنارملٹیز یا کوئی چیزیں کٹھی ہو جائیں صحت کے حوالے سے، تو اس کو ہم سنڈروم بولتے ہیں۔ تو سنڈروم جو میٹابولک ہے، میٹابولزم کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کھاتے ہیں کھانے، وہ باڈی میں اس کی انرجی بنتی ہے، وہ انرجی بننے کے بعد ہمارا پوری باڈی کا سسٹم چلتا ہے، تو یہ میٹابولزم ہے۔ بہت اس کی زیادہ تفصیل ہے، لیکن ایک عام سلیس زبان میں جو ہم خوراک کھاتے ہیں، وہ پھر ہم جو برید کرتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، یہ چیزیں مل کے باڈی کے اندر انرجی پیدا ہوتی ہے، باڈی میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے، جس سے ہمارا جسم گرم رہتا ہے، ہمارے جسم کا سارا نظام چلتا ہے، تو یہ میٹابولزم ہے۔ تو میٹابولک سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جس میں ملٹیپل چیزیں میٹابولزم کے خراب ہونے کی وجہ سے اکٹھی جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ 5 چیزیں ہیں، اور 5 چیزیں میں سے کوئی بھی 3 اکٹھی ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو میٹابولک سنڈروم ہے۔ اور یہ جاننا کیوں ہے کہ میٹابولک سنڈروم ہے، یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کی ٹیکنیکل کیا ڈیفینیشن ہے۔ سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے، اس کا سب سے امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہے، وہ تو ہے آپ کی ویسٹ لائن۔ لیکن پلیز نوٹ کیجئے کہ جو آپ کی ٹیلر ویسٹ لائن ہے نا، جو آپ کا ٹراؤزرز کا سائز ہے، جو آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، جو آپ کی ٹراؤزرز ہے جہاں پہنتے ہیں، جینز پہنتے ہیں یا ٹراؤزرز پہنتے ہیں، وہ ٹپیکلی آپ کی ویسٹ لائن سے کافی چھوٹی ہوتی ہے، چونکہ وہ ہم کافی نیچے پہنتے ہیں اور کس کے پہنتے ہیں۔ جو میڈیکل سینس میں ویسٹ لائن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بالکل ریلیکس ہو کے کھڑے ہوں، اور آپ کی نیول لیول کے اوپر، یہ جو دھنی ہے اس کے لیول پہ، جس طرح سے آپ نیچرل طریقے سے کھڑے ہو، ایسے کھڑے ہونا، ایسے نہیں کہ میئر کرتے وقت آپ پیٹ پورا کھینچ لیں، ایسے نہیں، بالکل ریلیکس طریقے سے کھڑے، نہ پیٹ کو باہر نکالنا ہے نہ کھینچنا ہے، نیچرل طریقے سے کھڑے ہو کے، بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے ایک فیتے کے ساتھ میئر کرنی اپنی ویسٹ، بالکل ایسے لوز طریقے سے، اس کو فیتے کو بھی بہت نہیں کسنا، لیکن فٹ ہو کے ساتھ مل جائے تو میئر کرنی اپنی ویسٹ لائن، ٹھیک ہے۔ آف کورس بیسٹ ہے کہ آپ شرٹ کے بغیر چیک کریں اپنے پرائیویٹ سیٹ اپ میں۔ تو اگر تو آپ مرد ہیں تو آپ کی یہ ویسٹ لائن ہونی چاہیے 40 سے کم، اور اگر آپ خاتون ہیں تو یہ آپ کی ویسٹ لائن ہونی چاہیے 35 سے کم، 35 سے کم انچز، ٹھیک ہے۔ 40 انچز مردوں کے لیے اور 35 انچز عورتوں کے لیے۔ میں ایک چیز واضح کرتا جاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ پڑھتے ہوں اس چیزوں کے بارے میں، تو انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو اور ڈیفینیشن بھی مل جائیں گی۔ اس کے اوپر ہماری ابھی کنسنسس نہیں ہے۔ کچھ ادارے دنیا میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مردوں میں 36 کی لمٹ ہونی چاہیے اور عورتوں میں 30 کی لمٹ ہونی چاہیے، یہ بھی کچھ، یا 32 کی لمٹ ہونی چاہیے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ پھر کچھ دنیا کے ادارے یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکنز کے لیے یا یورپینز کے لیے اور کٹ پوائنٹ ہے، جو ایشینز ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہمارے لیے اور کٹ پوائنٹ ہے، ہمارے لیے اور بھی اسٹرکٹ ہے، یعنی اگر 40 کسی گورے کے لیے صحیح ہے تو ہمارے لیے وہ زیادہ ہے، اس طرح کی ہماری وہ جینز میں کچھ مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ میرے خیال میں جو ریلیٹیولی ایزی فگرز ہیں، جو تھوڑی سی ریلیکس بھی ہیں، وہ ہے 40 انچز مردوں میں،
35 इंचेस औरतों में, इससे कम होनी चाहिए वेस्ट लाइन जब आप रिलैक्स तरीके से खड़े होकर मेजर करें। दूसरी बात मैं ये वजह कर दूं कि इसका तल्लुक आपकी हाइट से जो उम्र से नहीं है। आप 18 साल के हैं या 50 साल के हैं या 70 साल के हैं, यही फिगर अप्लाई होगी। आपका कद 5 फुट है, 5.5 फुट है, 6 फुट है, 6.5 फुट है, यही फिगर अप्लाई होगी। यानी इसीलिए ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो गया कि इसमें सिर्फ आपने वेस्ट लाइन मेजर करनी और कोई तरद्दुद नहीं है। तो एक तो ये कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो ये है। उसके अलावा जो 4 और कंपोनेंट वो ये है कि अगर आपकी खाली मैदा वाली शुगर, अगर आप 8 घंटे फाका करने के बाद जो खाली मैदा वाली शुगर 100 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा है, प्लीज़ नोट कीजिए कि ये 100 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा अभी डायबिटीज़ नहीं है, ये अभी प्री डायबिटीज़ है, लेकिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो एक कंपोनेंट है वो इससे पूरा हो जाता है अगर आपकी 100 से ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर 126 से ज़्यादा फिर तो डायबिटीज़ होगी, तो इसका मतलब है 100 और 126 के बीच में फास्टिंग शुगर है, तो ये दूसरा कंपोनेंट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। तीसरा कंपोनेंट है आपका ब्लड प्रेशर। आपका बिल्कुल एक रिलैक्स तरीके से ब्लड प्रेशर लिया जाए जब आप बैठे हों, 2, 4, 5 मिनट से बैठे हों, कोई चाय कॉफ़ी ना पी हो, कोई ज़हनी तनाव ना हो, कोई खाना वाना भी रिसेंटली ना खाया हो, और प्रॉपर तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट से आपका बीपी चेक किया जाए, आर्म अपना बाजू ऊपर करके, कपड़ा ऊपर करके, एक कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट के साथ। अगर आपका वो ब्लड प्रेशर 130 और 85 से ज़्यादा है, यहाँ भी ये पॉइंट नोट करने वाला है कि 130 और 85 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर को हम हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज नहीं कहते, वो 140 और 90 की फिगर है। यानी अभी ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा सा नॉर्मल रेंज के अपर एंड की तरफ गया है, लेकिन अभी हाई नहीं हुआ। जब 140-90 से ज़्यादा हो जाएगा फिर आपको कहा जाएगा हाइपरटेंसिव, यानी ब्लड प्रेशर का मर्ज। लेकिन अभी 130 और 85 से ज़्यादा हुआ है, 140 और 90 से कम है, ये आपका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक कंपोनेंट वो पूरा हो गया। अच्छा, तीसरा है आपका जो एक ब्लड टेस्ट होता है ट्राइग्लिसराइड्स। कोलेस्ट्रॉल का आपने देखा है, कभी कराएगा, उसके 4-5 उसके फीचर होते हैं पैनल्स, लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड है उसके अंदर, जो ट्राइग्लिसराइड जो फैट्स को, चर्बी को कहते हैं, अगर वो लेवल आपके ब्लड में 150 है, 150 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा है, ये दोनों जेंडर्स में, मेल हो या फीमेल में हो, दोनों में एक ही। अच्छा, ब्लड शुगर की, ब्लड प्रेशर की और ये ट्राइग्लिसराइड की फिगर दोनों जो हमारे जिनसे हैं, मर्द या और, दोनों में एक ही अप्लाई होती है। तो ट्राइग्लिसराइड की फिगर है 150। अगेन मैं ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि किसी का, बंदे का खाली ट्राइग्लिसराइड 150 हो जाए या 160 हो जाए, उसको हम दवाई नहीं देते, लेकिन जब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ 140, 150 या 155 होता है, तो फिर ये किस्म का हम इसको एबनॉर्मल समझते हैं। तो जो आखिरी इसका कंपोनेंट है वो है HDL। HDL क्या होता है? ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। ये आम लोग इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। अगरचे ये गुड लाइपोप्रोटीन कह सकते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को तो हम समझते हैं वो तो गुड नहीं होता, लेकिन ये HDL के साथ जब वो कोलेस्ट्रॉल मिलता है ना, तो वो उस गुड हो जाता है। तो इसका लेवल अगेन, यहाँ पे अगेन जेंडर स्पेसिफिक है। अगर आप मर्द हैं तो आपका ये 40 से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर आप औरत हैं तो 50 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवर्स है, यहाँ ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो अगर आपका 40, अगर आप मर्द हैं और 40 से कम है, अगर आप मर्द हैं, आपका HDL 40 से कम है, या अगर आप औरत हैं तो आपका जो अपना HDL है वो 50 से कम है, तो फिर ये आप किस्म, ये भी कंपोनेंट पूरा होगा। याद रहे कि ये तमाम चीज़ें, ये फिगर्स तब एप्लीकेबल होंगी अगर कोई बंदा अभी दवाई नहीं ले रहा। अगर तो आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं, कभी आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, अगर आप शुगर है तो दवाई ले रहे हैं, तो फिर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। फिर तो आपको बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है, उसका इलाज हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट तब एप्लीकेबल है कि अभी आपको कोई बीमारी डिक्लेयर नहीं की गई, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, 5 कंपोनेंट है। पहला है वेस्ट लाइन। अगर आप मर्द हैं तो वेस्ट 40 इंच से ज़्यादा हो, औरत है तो 35 से ज़्यादा हो, तो एक कंपोनेंट पूरा हो गया। ब्लड प्रेशर आपका 130 और 85 से ज़्यादा हो तो दूसरा कंपोनेंट पूरा हो गया।
ब्लड शुगर फास्टिंग 100 से ज़्यादा और 126 से कम हो तो तीसरा कॉम्पोनेंट पूरा हो गया। ट्राइग्लिसराइड 150 से ज़्यादा हो तो चौथा कॉम्पोनेंट पूरा हो गया। HDL अगर आप मर्द हैं और 40 से कम है आपका HDL, और अगर आप औरत हैं तो 50 से कम है तो पांचवा कॉम्पोनेंट पूरा हो गया। इनमें से कोई भी 3 पूरे हो जाएं तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो फिर ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम डायग्नोज करके करना क्या है, क्या इसका मकसद है? इसका बुनियादी मसला ये मकसद है, मैं समझता हूँ कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि ये एक किस्म की मेडिकल सेंस में खुशहाली का दूसरा नाम है। खुशहाली से मुराद ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट, हमारा मुल्क में, हमारे लोगों में खुशहाली का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर खाना मैसर है तो खाओ, और अगर काम करने की ज़रूरत नहीं है तो मत करो। माफ़ी चाहता हूँ अगर आपके सेंटिमेंट्स इस बात से मजरूह होते हैं, लेकिन ये है रियलिटी। हमारे मुल्क में अगर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर खाना अवेलेबल है तो खाते जाओ, अगर आप काम करने की नहीं ज़रूरत तो पानी भी खुद ना पियो, आपका कोई बंदा आपको पकड़ाएगा तो पिए। तो ये बिल्कुल गलत है। इस वजह से, इस प्रोसेस की वजह से कि हमारी जो बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, खाने की मिकदार ज़्यादा, कंजम्पशन कम, इस सूरत में हमारे वज़न बढ़ते हैं, वेस्ट लाइन बढ़ती है, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, और अगर ये नहीं करते तो बेशुमार तरह के मसाइल आ सकते हैं। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर वाहद एक बीमारी देखी जाए जो आपकी लाइफ को कम कर सकती है, जो आपको बाद में हार्ट अटैक का बायस बन सकती है, जो स्ट्रोक का बायस बन सकती है, गुर्दे फेल होने का बायस बन सकती है, लिवर फेल होने का बायस बन सकती है, तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगरचे उसकी कोई अलामात नहीं, बड़े लोग खुश होते हैं कि माशाल्लाह से बच्चा बड़ा सेहतमंद है, लेकिन ये सेहत जो है बाद में जाके आपको महंगी पड़ेगी। अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो प्लीज़ इसका अभी से तदारक करें। इसमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लें ताकि वो आपको गाइड करे, लेकिन मोस्टली जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है इसकी ट्रीटमेंट जो है वो कॉमन सेंस के ऊपर बेस करती है। यानी वो चीज़ें जिसकी वजह से हुई है, जो किस्म की खुशहाली का गलत आपके ऊपर हो गया इतलाक, उसको आपने रिवर्स करना है। बेशक आपको काम करने की नहीं ज़रूरत, अल्लाह ने आपको नेमतें दी हुई हैं। आप प्लीज़ अपनी हेल्थ के लिए जितना काम कर सकते हैं, जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं करें। अगर आपके काम काज में चलने की, फ़िज़िकल एक्टिविटी की गुंजाइश है तो वो करें, अदरवाइज़ वॉक करें, कोई गेम करें, कोई एक्सरसाइज करें, और खाने में मियाना रवि करें। दुनिया की तमाम नेमतें एंजॉय करें जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, लेकिन पेट भरने से पहले, काफ़ी पहले अपना हाथ खींचें। तमाम चीज़ें खा सकते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कोई भी दुनिया की चीज़ एब्सोल्युटली मना नहीं है, लेकिन प्लीज़ मिकदार कम रखें और इसको मुस्तकिल बेसिस पे करें। और फिर दूसरा इसका बहुत पहलू अच्छा है कि ये आमतौर पे हमारे खाने पीने की आदत और जो एक्सरसाइज की आदत, ये फैमिलीज़ में ट्रेंड रन करते हैं। अगर घर के एक फ़र्द को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुई है तो बेस्ट ये है कि पूरा घराना नए तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करे कि ताकि बाकी लोगों को ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना हो। मेटाबॉलिक सिंड्रोम भले से उसकी कोई अलामात नहीं, लेकिन फ्यूचर में जाके ये बहुत बड़ा मसला बन सकती है आपके लिए। इसलिए अभी आपके लिए एक सुनहरी मौका है, और इतना अच्छा मौका कि आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से निजात अपने आप को दिलाएं। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा और इसके ऊपर आप अपने इसके ऊपर अमल करेंगे। किसी तरह की वजाहत चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, मेरे इस लिंक पे यहाँ नीचे अपने कमेंट्स में लिखें। मैं फिर हाज़िर हूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।